Hello students, so in this lecture I'm going to start with the new chapter, that is reproduction in organisms. Okay? So the question arises is, why does an organism require to reproduce? So most of us know the answer. Reproduction in organism. Okay? Every animal organism on the surface of the earth is going to undergo the process of reproduction. Maybe it's going to be asexual reproduction or sexual reproduction, but reproduction to hone wala hai. So if you want to define reproduction, तो we'll define it as the capacity of an organism to perpetuate its own kind. इसे define करेंगे? That is the capacity of an organism to perpetuate its own kind. ठीक है, उसके टाइप के दूसरे ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करना, दैट इज द इंटेंशन ऑफ रिप्रोडक्शन. कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू परपेचुएट मीन्स टू इंक्रीज, टू मल्टीप्लाई, ओके, इट्स ओन काइंड, अपने तरीके के दूसरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना, सो दैट देयर जनरेशंस कैन कंटिन्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, डन. नाउ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक और चीज आती है, दैट इज द लाइफ स्पैन. एवरी इंडिविजुअल, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन. ठीक है, तो अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करूं, अगर लाइफ स्पैन को डिफाइन करें तो लाइफ स्पैन को कैसे डिफाइन करेंगे? सो लाइफ स्पैन इज व्हाट? दैट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ, टाइम period from birth to death of an organism. ठीक है, टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ. यहां पे अगर मैं डेथ की बात करता हूं तो आई हैव टू मेंशन इट एज द नेचुरल डेथ. ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नॉट डेथ natural death of an organism. ठीक है, so this is the definition for reproduction, this is the definition for lifespan. So let's talk about the lifespan in different animals. So if I talk about mayfly, so the lifespan of mayfly is 1 day. Is 1 day. If I talk about butterfly, अगर बटरफ्लाई की बात करते हैं, so the lifespan is 2 to 5 weeks. If we talk about the ant queen, that is 15 years. That is 15 years. If I talk about the queen bee, the lifespan is 2 to 5 years. The lifespan is 2 to 5 years. If I talk about the crow, अगर crow की बात करते हैं, so that is 15 years. अगर पैरट की बात करते हैं
So parrot में it is 140 years. It is 140 years. और अगर काऊ की बात करें, for cow it is 20 to 25 years. और अगर एलिफेंट की बात करते हैं, so एलिफेंट के केस में it is 70 years. It is 70 years. दूसरे एनिमल्स भी मेंशन कर देता हूं मैं. Let's talk about the tortoise. So tortoise is 100 to 150 years. And if I talk about the humans का कितना है आपको आइडिया है? Humans is 122 years. Humans is 122 years. So आप बोलोगे सर 122 years थोड़ी कोई जीता है. I'm not talking about all the humans. I'm talking about the human, one of the human that existed for 122 years. तो उसके हिसाब से अगर आप लाइफ स्पैन देखो तो humans की लाइफ स्पैन is 122 years. आप इतना जी सकते हो. आप जी नहीं पा रहे हो, that is a different thing because of the different environment in this environment. Okay, or the lifestyle. आप 122 years नहीं जी सकते हो, but some of the people who have a healthy lifestyle, maybe they can survive for 122 years. तो अभी तक का जो longest surviving है, that is 122 years. तो उसके हिसाब से humans की लाइफ स्पैन कितनी हो जाती है? 122 years. So आप देख सकते हो यहाँ पे, these are all living organisms, but they are different living organisms, and based on their different habitat, different food habits, environment, आप देख रहे हो अलग अलग लाइफ स्पैन अवेलेबल है फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म. सबके तो बारे में बात नहीं करी, देयर आर सो मेनी ऑफ देम, बट सम ऑफ देम अकॉर्डिंग टू अ टेक्स्ट बुक हैव बीन मेंशन्ड. ठीक है. सो मे फ्लाई दैट इज 1 day, बटरफ्लाई 2 to 5 weeks, एंड क्वीन 15 years, क्वीन बी 2 to 5 years, tortoise 100 to 150 years, crow 15 years, parrot 140 years, cow 20 to 25 years, elephant 70 years, and the human 122 years. ठीक है. चले आगे. नाउ one more term we can use is life expectancy. Okay, what is, ये तो मैंने बता रखा कि इतना लाइफ स्पैन है, but that doesn't mean every individual, every organism is going to live up to this particular time period. उससे कम भी जी सकता है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस पे डिपेंड करेगी? बट ऑब्वियसली आपके हैबिटेट पे डेवलप करेगी, आपकी डाइट पे डेवलप करेगी, आपकी लाइफस्टाइल पे डेवलप करेगी. So I'll write this down. I hope आप इसे कॉपी कर लेना. So if I talk about the life expectancy, ठीक है. So life expectancy is different in, I'm talking about the humans now, it is different in different countries. The countries which are developed, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है. जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिन कंट्रीज में, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम होगी. बट ऑब्वियसली क्यों कम है? बिकॉज देर आर नो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, देयर इज नो प्रॉपर फूड अवेलेबल, देयर इज नो प्रॉपर लाइफस्टाइल अवेलेबल फॉर द पीपल स्टेइंग इन दैट पुअर कंट्रीज. ठीक है. तो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी. इफ यू टॉक अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होगी. ठीक है. सो it is different
in different countries. It is different in different countries. ठीक है. Now मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूं यहां पे. इंडिया की अगर बात करते हैं, so इंडिया पे on an average a human can survive for 65 years. तो इंडिया में ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 65 years है. अगर आप चले जाओ यूएस, तो यूएस में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज 78 years. And if I talk about जापान, तो जापान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज 81 years. That is 81 years. So that means if you have a healthy lifestyle, you have a healthy environment है आपकी सराउंडिंग में, तो yes, आपकी जो लाइफ स्पैन है आप बढ़ा सकते हो. ठीक है. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आपको समझ में आ गया. सो लेट्स मूव अहेड. So I was talking about reproduction. तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया. अगर इफ यू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखें, characteristics of reproduction देखें, तो what do we find? We find that क्या क्या चीजें होती है when the reproduction is taking place. So there is duplication of genetic material. There is duplication of genetic material. ठीक है. That is, I'm talking about the DNA. Second point is there is formation of reproductive units, that is gametes. Formation of reproductive units, that is gametes. ठीक है. और थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन फ्रॉम गैमीट्स, मतलब फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. ठीक है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी रिप्रोडक्शन की? आपको वहां पे डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए, देखने को मिलेगा. डीएनए देखने को मिलेगा. फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स देखने को मिलेगा आपको, मतलब गैमेट्स बनेंगे. एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, मतलब गैमेट से आपको न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा. क्लियर है? नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको पता है रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं. देयर इज यहां पे लिख देते हैं asexual reproduction. There is asexual reproduction and there is sexual reproduction. तो मैं पहले asexual reproduction की बात करते हैं. तो asexual reproduction में क्या होता है? There is requirement of a single parent. तो I'll mention it. This is single parent is required, which is termed as uniparental, which is termed as uniparental. ठीक है.
देयर इज नो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। नो गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन टेक्स प्लेस। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और फ्यूजन टेक्स प्लेस, ठीक है। इट इज टर्म्ड एज एगैमेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? इट इज टर्म्ड एज एगैमेटोजेनेसिस। ठीक है। फिर यहां पे जो सोमैटिक सेल्स है, सोमैटिक सेल्स आपको पता है ना, द वंस व्हिच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो जो सोमैटिक सेल्स है वो सोमैटिक सेल भी क्या कर सकते हैं? दे कैन गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो मैं यहां पे लिखता हूं सोमैटोजेनिक। दैट मीन्स somatic cells can form new organism. Somatic cell can form new organisms. ठीक है, that is termed as somatogenic. This is not possible in sexual reproduction. ठीक है. Then as there is no fusion of gametes, दो gametes नहीं आ रहे, सिंगली पेरेंट अवेलेबल है, तो यहां पे देयर इज नो व्हाट यू कॉल नो वेरिएशन फाउंड। वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जो ऑफस्प्रिंग बनता है दैट ऑफस्प्रिंग इज एक्चुअली सिमिलर टू द पेरेंट, वो एग्जैक्टली पेरेंट की जैसा दिखेगा, क्योंकि वहां पे कोई वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। तो मैं लिखूंगा एग्जैक्ट जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पेरेंट के जैसा दिखेगा। सो मैं लिखूंगा इट वुड लुक लाइक अ क्लोन। क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड, और यहां लिखेगा अपन सिमिलर एग्जैक्ट लाइक द पेरेंट, exact like parent, ठीक है। and no variation. Variation is a very important characteristics of sexual reproduction, जो आपको asexual reproduction में देखने को नहीं मिलेगा। so clones are obtained exact like parents. Clones are what? Exact copy like parents. There is no variation. C. Done. Now यहाँ पे मैं एक और टर्म दे देता हूँ, क्लोन्स जो है दैट इज द प्लूरल। अगर क्लोन्स का सिंगुलर लेते तो सिंगुलर ऑफ क्लोन्स इज रैमिट। इंडिविजुअल यूनिट को क्या कहा जाएगा? रैमिट कहा जाएगा। Ramete. Ramete is what? Ramete is singular of clone. It is singular of clone. ठीक है, that is the ramete. ठीक है, so ये सब चीजें क्या होगी? This is going to be observed in the asexual reproduction, single parent, no gamete formation, somatogenic, मतलब any part of the body can form a new organism, and clones are obtained because it's going to be exactly like the parent. तो क्या है? clones कहा जाएगा। clones is plural, singular क्या होता है? ramete होता है। ठीक है। now किन organisms में asexual reproduction देखने को मिलेगा? which organisms perform asexual reproduction? I'll rub this down. ठीक है, so let's put it as occurrence of asexual reproduction.
Okay, so if I talk about the occurrence of asexual reproduction, occurrence of asexual reproduction. I'm sorry, asexual, not the sexual reproduction. Okay, so where do you observe it? In which organisms? So we observe it in the lower organisms such as monerans. आपने एनिमल किंगडम पढ़ रखा है, मोनेरा, मोनेरंस, ठीक है. देन प्रोटिस्टेंट्स में देखने को मिलेगा, में देखने को मिलेगा. ओके, प्लांट्स में भी देखने को मिल सकता है. फंगाई में देखने को मिलेगा, एंड इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, not in the higher organism, lower invertebrates. ठीक है, so occurrence of asexual reproduction is found in monerans, protistans, plants, fungi and lower invertebrates. ठीक है, simple and easy. Okay, so let's talk about types of asexual reproduction. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं. तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में इसके बारे में सुना होगा. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो आई टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप, दैट इज फिशन. फिशन के बारे में आप लोगों को मे भी थोड़ी आइडिया तो होगी ही. अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे इस चीज को कि फिशन में क्या होता है. सो फिशन में I'll talk about the first category, that is binary fission. ठीक है, बाइनरी फिशन देख लेते हैं. सो बाइनरी फिशन की अगर बात करूं, बाइनरी फिशन की अगर बात करें तो बाइनरी फिशन इज पेरेंट सेल इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट विच स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल. यहां पे क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट सेल स्प्लिट हो जाएगा दो डॉटर सेल्स में. लिखते हैं, द पेरेंटल सेल is a reproductive unit which splits into two daughter cells, which splits into two daughter cells. ठीक है, बाइनरी फिशन इज पेरेंटल सेल इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट. जो पेरेंट है वो खुद क्या एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और उस रिप्रोडक्टिव यूनिट से क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी और दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा. और ये दोनों डॉटर सेल्स क्या होंगे, दे वुड बी रिप्रेजेंटिंग और दे वुड बी एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट. सो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, दे आर गोइंग टू बी द क्लोन्स, दे आर गोइंग टू बी द क्लोन्स. ठीक है, सिंपल एंड इजी, गुड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिंपल फिशन. जो बाइनरी फिशन है उसमें एक सिंपल फिशन देख लेते हैं, जिसमें वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अमीबा. सो इफ आई टॉक अबाउट सिंपल फिशन,
ठीक है, तो सिंपल फिशन में क्या होता है, अमीबा जो होता है उसका शेप इट डज नॉट हैव अ फिक्स शेप। तो यहां दिखाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस भी होगा उसके पास और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होगा, ठीक है। सो होता क्या है, दिस न्यूक्लियस के अंदर देयर इज डिवीजन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, ठीक है, दिस डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। तो मैं दिखाऊंगा डिवीजन होने के बाद the amoeba is going to possess what? It's going to possess two nuclei. Now the amoeba, it is going to possess two nuclei, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है। न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद ये जो अमीबा है इट विल स्टार्ट स्प्लिटिंग, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से स्प्लिटिंग चालू होगी, दे विल स्प्लिट अपार्ट and each of the nuclei is going to be present in each of this cell, and this would result in the formation of what? ये जब split हो जाएगा तो दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो ये स्टेप पे मैं लिख सकता हूं देयर इज माइटोसिस टेकिंग प्लेस, ठीक है, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, देयर इज न्यूक्लियर डिवीजन टेकिंग प्लेस, देयर इज न्यूक्लियर डिवीजन टेकिंग प्लेस, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे अपन, स्प्लिटिंग ऑफ दिस सेल, दैट इज साइटोकाइनेसिस, स्प्लिटिंग ऑफ सेल दैट इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फिशन, जहां पे ये एक पेरेंटल सेल है, ये स्प्लिट होके किसमें बन गया, दिस आर व्हाट, दिस आर टू डॉटर सेल्स, इनको नाम क्या देंगे, दिस आर टू डॉटर सेल्स which can be termed as clones, ठीक है। अब यहां पे जो स्प्लिटिंग हो रही है ना, द स्प्लिटिंग ऑफ दिस सेल इट इज टेकिंग फ्रॉम एनी प्लेस, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है। तो यहां पे मैं मेंशन करूंगा सिंपल फिशन में दैट पेरेंट जो है, पेरेंट इज irregular in shape, parent is irregular in shape, and दूसरी बात जो देखेंगे अपन दैट इज जो क्लीवेज हो रहा है, जो स्प्लिटिंग हो रही है सेल की, क्लीवेज और स्प्लिटिंग ऑफ cell occurs from any side, ठीक है, इट्स नॉट फिक्स्ड। जो क्लीवेज होगा, जो स्प्लिटिंग होगा सेल का, वो कोई भी साइड से अकर हो सकता है, इट इज नॉट फिक्स्ड। इसलिए आपको क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो पेरेंट है वो पेरेंट इरेगुलर इन शेप है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अमीबा, सो इरेगुलर इन शेप आपको देखने को मिलेगा, और जो स्प्लिटिंग होगी ऑफ द सेल अकर्स फ्रॉम एनी साइड, कोई भी साइड से आपको स्प्लिटिंग होते हुए दिखेगी। डन, सिंपल एंड इजी। सो दिस वाज सिंपल फिशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बाइनरी फिशन, कि बाइनरी फिशन में क्या होगा। ओके तो यहां पे आप देख रहे हो, दिस इज, यू कैन टर्म इट एज बाइनरी फिशन एज वेल, ठीक है, बट दिस इज वेरी सिंपल ऑफ इट। This can be termed as binary fission because दो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे, but the pattern of fission is very simple.
So now I'll talk about one more type of binary fission, that is going to be the longitudinal binary fission. ठीक है? So if I talk about जो अभी आपने पढ़ा, we can term it as a simple binary fission, ठीक है? और अभी जो मैं आपको बता रहा हूं that is longitudinal binary fission. longitudinal binary fission, ठीक है? तो यहां पे I'll be taking an example of यूग्लिना एंड ट्राइपेनोसोमा का एग्जांपल ले सकते हैं. सो अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, और यहां पे इट हैज दैट undulating membrane and then there is the presence of this structure flagella. ठीक है, ये क्या है? दिस इज द undulating membrane है. undulating membrane. And this is what? This is flagella. This is flagella, this is undulating membrane. अब यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा ना, सेंटर में there's going to be presence of nucleus. ये जो ऑर्गेनिज्म है ये longitudinally split होता है, splits into two like this, बीच में से. ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट होगा फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, सो दिस फिशन इज नोन एज लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन. और इसके एग्जांपल में किसको लेंगे? सो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ यूग्लिना. यूग्लिना का एग्जांपल ले सकते हैं एंड ट्राइपेनोसोमा. सो ठीक है, यूग्लिना एंड ट्राइपेनोसोमा कैन बी टेकन एज द एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन. दूसरा कौन सा फिशन अवेलेबल है? सो द अनदर टाइप ऑफ फिशन, बाइनरी फिशन, दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. ठीक है, सो ट्रांसवर्स में विल टेक द एग्जांपल ऑफ पैरामेशियम. पैरामेशियम की बात करेंगे. What do we have? We have the transverse binary fission. So transverse binary fission की अगर बात करें, so what do we observe? तो मैंने बोला यहाँ पे एग्जाम्पल अपन ले लेंगे पैरामोशियम का. So let's see. ठीक है, let's say this is paramecium. It consists of two nuclei. One is going to be a bigger nucleus, another is going to be smaller one. तो मैं दिखाता हूँ. One is going to be the bigger one, another one is going to be smaller one. The bigger one is termed as the macronucleus. Macronucleus, and the smaller one is going to be termed as micronucleus. ठीक है,
अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर वेल डिफाइंड, द एंटीरियर पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज वेल डिफाइंड। ये जो पोर्शन है दिस इज टर्म्ड एज द एंटीरियर साइड and this is going to be termed as the posterior side। ठीक है, तो यहां पे क्या मैंने लिखा है, ट्रांसवर्स फिशन होगा, मतलब ये ऑर्गेनिज्म बीच में से स्प्लिट होने वाला है। ठीक है, सो एक बात जो आपको और याद रखनी फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज मैक्रोन्यूक्लियस में जो डिवीजन होगा दैट इज गोइंग टू बी एमाइटोसिस। जो डिवीजन मैक्रोन्यूक्लियस में देखने को मिलेगा दैट इज एमाइटोसिस, व्हाइल जो डिवीजन माइक्रोन्यूक्लियस में देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी माइटोसिस। दैट इज गोइंग टू बी माइटोसिस। इज गोइंग टू बी माइटोसिस। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म जब दो में स्प्लिट होगा ना, तो दिस इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस। इस तरीके से स्प्लिटिंग होगी। सो ईच वन ऑफ देम वुड हैव द, ठीक है, आप देख रहे हो ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग हुई। सो जो पैरामीशियम का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द एंटीरियर एंड, ये एक नया पैरामीशियम बन जाएगा, ये दूसरा पैरामीशियम बन जाएगा। तो जो एंटीरियर वाले पार्ट से फॉर्म हो रहा है ना, एंटीरियर साइड से फॉर्म हो रहा है, दैट इज टर्म्ड एज प्रोटर। उस पैरामीशियम को कहा जाएगा प्रोटर। द वन विच इज फॉर्म फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट and the one which is formed from the posterior part is known as opistha. It is termed as opistha. ठीक है, this should be very very clear now. Anterior portion of the paramecium से जो नया paramecium बनेगा through binary fission, that is going to be termed as proter, और posterior portion से जो नया paramecium बनेगा that is going to be termed as opistha. ठीक है, सो व्हाट विल हैव टू पैरामीशियम। ठीक है, और दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे ना फिर। डन। सो दो कॉपीज मिल गई आपको, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। सो दिस इज हाउ द पैरामीशियम इज गोइंग टू डिवाइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरामीशियम। ये किसका एग्जाम्पल, पैरामीशियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पैरामीशियम में आपको बाइनरी फिशन दिखेगा, कौन सा वाला, ट्रांसवर्स वाला। और पैरामीशियम में इंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड्स आर वेल डिफाइंड। तो जो एंटीरियर साइड के डिवीजन से पैरामीशियम बनेगा उसे प्रोटर कहा जाता है, और जो पोस्टीरियर साइड के पार्ट से बनेगा नया पैरामीशियम उसे क्या कहा जाता है, ओपिस्था कहा जाता है। ठीक है, सो एट द एंड वी वुड हैव टू डॉटर पैरामीशियम जो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे टू दी पेरेंट। तो मैं लिख दूंगा दिस आर दी क्लोन्स। दिस आर दी क्लोन्स। ठीक है, सिंपल एंड इजी। एक और बाइनरी फिशन देखते हैं। I'll just give the examples. That is going to be the oblique binary fission. कौन सा बाइनरी फिशन है, ऑब्लिक बाइनरी फिशन, जिसका एग्जाम्पल है आल्गे। ऑब्लिक
ठीक है, सो इट इज ऑब्जर्व्ड इन सेरेशियम, it is observed in Serratium and Gonilox. Serratium and Gonilox, which are types of what? They are types of algae. तो आपने तीन टाइप के बाइनरी फिशन देख लिए, आपने ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन देखा, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन देखा एंड ऑब्लिक बाइनरी फिशन, जिसके एग्जांपल मैंने लिखे सेरेशियम एंड गोनिलॉक्स, व्हिच आर द टाइप्स ऑफ व्हाट? दे आर टाइप्स ऑफ algae. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द मल्टीपल फिशन नाउ. So मल्टीपल फिशन की बात करें तो आपको पता ही है, द पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू मैनी डॉटर सेल. पेरेंट सेल splits into many डॉटर सेल. ठीक है, जो पेरेंट सेल है वो काफी सारे डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाएगा. इसके एग्जांपल में अगर मैं लूं तो आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम आपको पता होगा, द वन व्हिच कॉजेस मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. ठीक है, so plasmodium vivax is an organism which is responsible for malaria. ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के केस की अगर बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम अंडरगोज सीजोगोनी. ठीक है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू मल्टीपल फिशन. ठीक है, in plasmodium caesogony is observed in the liver and RBC cell. अपनी बॉडी में जब ये एंटर होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है caesogony is observed in liver and RBC. ठीक है, so now I was talking about what is caesogony. ये वर्ड आपको याद रखना है. सिजोगोनी इज asexual reproduction by multiple fission. This is asexual reproduction by multiple fission. That is termed as सिजोगोनी. ठीक है, और ये कहां पे होता है? दिस इज टेकिंग प्लेस अपनी बॉडी के अंदर होता है. दिस इज टेकिंग प्लेस इन द लिवर एंड आरबीसीज. जब मलेरिया होता है ना आपको, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं. ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अंडरगोज सिजोगोनी, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिशन. ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये जैसे कि अगर पेरेंट सेल है ना, दिस इज वन पेरेंट सेल, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है. तो पहले क्या होगा, पेरेंट सेल का न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करेगा. ठीक है, तो काफी सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे, और फिर क्या होगा, इन न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक, ये सब न्यूक्लियाई थे. अब इन न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म आ जाएगा. देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. ये रहा न्यूक्लियाई. ठीक है, सो पहले न्यूक्लियाई क्या हो गए? स्प्लिट हो गए, और फिर न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में क्या आ गया? देयर इज साइटोप्लाज्म. अब ये सब कहां हुआ? पेरेंट सेल के अंदर हुआ. ठीक है,
जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो पेरेंट सेल ये स्प्लिट हो जाता है, ये टूट जाता है, द वॉल ऑफ द पेरेंट सेल ब्रेक्स, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जितने भी इंडिविजुअल सेल बने हैं, as the wall breaks, all these individual cells are going to come out, ये सब बाहर आ जाएंगे, they all come out of the parent cell and they go to form a individual organism. ये क्या करेंगे, ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे, इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेंगे। और फिर से दे वुड अंडरगो द सेम प्रोसेस, पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, काफी सारे ऑर्गेनिजम्स बने, काफी सारे प्लाज्मोडियम बने, है ना, सो दे गोइंग टू परफॉर्म द सेम प्रोसेस अगेन, ठीक है, तो नंबर बढ़ता जाएगा, द नंबर इज गोइंग टू कीप इंक्रीजिंग। ठीक है, सो यहां पे क्या लिखे, फर्स्ट स्टेप पे लिखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, आई एम सॉरी, अक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, नॉट फॉर्मेशन, there is formation of cytoplasm, accumulation of cytoplasm around nuclei, accumulation of cytoplasm around the nuclei, और फिर क्या होगा, the wall of the parent cell breaks, and single cell or single organism come out of it, single cell or the single organism they come out of it, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पेरेंट सेल था, उसने पहले स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस स्प्लिट हो गए, फिर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन हो गया, और फिर ये जो वॉल थी वो वॉल टूट गई, तो जितने भी सेल्स बने थे इंडिविजुअल वो बाहर आ गए, तो वो इंडिविजुअल सेल्स क्या है, दोज आर प्लाज्मोडियम, तो काफी सारे सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है एट ए टाइम, काफी सारे प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन हुआ है, सो इट इज नोन एज multiple fission, and each of the plasmodium is going to repeat the process again. Each of the plasmodium would undergo the process of schizogony, that is asexual reproduction by multiple fission, ठीक है। तो नंबर बढ़ता ही जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, तो ये जो मलेरियल पैरासाइट है ये आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा। डन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सो नाउ जो अमीबा होता है ना, अमीबा इन दी एडवर्स कंडीशन, एक इंटरेस्टिंग चीज होती है अमीबा में, देयर इज एनसिस्टेशन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट अराउंड द सरफेस ऑफ द अमीबा। तो अमीबा जैसे मैंने बताया था इरेगुलर इन शेप होता है ना, तो यहां पे अमीबा पहले क्या करता है, अपना इरेगुलर शेप जो होता है उसको गिव अप कर देता है, ठीक है, इट बिकम्स सर्कुलर, ठीक है, इट गिव्स अप इट्स, ये क्या था, दिस आर दी सूडोपोडिया, तो इन सूडोपोडिया को गिव अप कर देगा, विड्रॉज दी सूडोपोडिया एंड बिकम्स सर्कुलर, और फिर क्या होगा,
there are formation of cyst around it. There's formation of 3 layers of cyst. ब्लैक से दिखा दिया, रेड से दिखा दिया, और एक और लेयर दिखा देता हूं मैं ग्रीन से. 3 लेयर्स बन गए किसके? सिस्ट के. ठीक है, 3 लेयर्ड सिस्ट आप बोलोगे तो अपन स्टेप्स लिख लेते हैं. क्या लिखे यहां पे? फर्स्ट इज अमीबा विड्रॉज सूडोपोडिया. सूडोपोडिया पता है ना आपको? फॉल्स फुट. दिस आर ऑल दी सूडोपोडियास. ठीक है, तो सूडोपोडिया को अगर विड्रॉ कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? अमीबा बिकम्स सर्कुलर इन शेप. उसका शेप सर्कुलर हो जाएगा और फिर क्या होगा? 3 layers of cyst are formed. 3 layers of cyst are formed. ठीक है, और न्यूक्लियस तो अंदर अवेलेबल ही है. अब इस न्यूक्लियस का क्या होगा? द न्यूक्लियस वुड अंडरगो डिवीजन. न्यूक्लियस का नंबर क्या होगा? बढ़ने लगेगा. और फिर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन हो जाएगा. तो यहां पे दिखा देते हैं अपन, साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो चुका है. ठीक है, सिंपल एंड इजी, समझ में आ गया. सो न्यूक्लियाई यहां तक सही था. फिर उसने क्या किया? इट अंडरगोज डिवीजन. उसने अपना नंबर बढ़ाया और फिर उसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन हो गया. सो ये जो प्रोसेस था, दिस इज नोन एज formation of spores, is known as sporulation. These are termed as spores. इन्हें क्या कहा जाता है? spores कहा जाता है. Okay, and the process is known as sporulation. To be more specific, ये जो spores बने हैं, they are termed as pseudospores. They are termed as pseudospores. ठीक है. So now what happens is, ये पूरा फॉर्मेशन हो गया. 3 लेयर सिस्ट बन गया है. स्पोरुलेशन के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया है. Now what happens is, when the favorable condition comes, the cyst is going to dissolve. ठीक है, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है अमीबा में, you have to make sure, आपको याद रखना पड़ेगा, this is taking place when amoeba is in adverse condition. कोई adverse condition चल रही है, maybe the habitat is not proper, maybe there's danger out in the surrounding. तो उस केस में ही अमीबा इस तरीके से रिप्रोड्यूस करने वाला है कि सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा. याद रखना, अमीबा नॉर्मली सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, बट अगर एडवर्स कंडीशंस अवेलेबल है तो उसी केस में दिस पैटर्न इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय अमीबा. ठीक है, तो अब क्या होगा? अब मैं क्या मेंशन करूं? सो आई हैव टू मेंशन इज व्हेन फेवरेबल कंडीशंस अराइज और व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, द 3 लेयर्स ऑफ द सिस्ट आर डिसॉल्व्ड. This was in the unfavorable condition, adverse condition. So now when favorable condition arise, the cyst is a protective covering. ठीक है, तो when the favorable condition arise, the cyst
dissolves and pseudospores come out of it, and pseudospores come out of it. ठीक है? And every pseudospore is going to form a new organism, that is amoeba. So there's a multiple copies being formed here, ना? तो इसलिए क्या कहा जाता है? It's termed as multiple fission. So first step is amoeba withdraws the pseudopodia. Second is amoeba becomes circular because of the withdrawal of the pseudopodia. Third is there is encystation. ये जो step है ना, इसे कहा जाता है encystation. मैं यहाँ लिख देता हूँ encystation. ठीक है? There's formation of 3 layers of cyst for the protection because the amoeba is facing adverse condition. और उसके अंदर क्या होगा? Sporulation होगा, जिसके through there's going to be formation of pseudospores. So when the favorable conditions arise, what is going to happen? The cyst dissolves. Cyst क्या हो जाएगा? जो protective layer है automatically dissolve हो जाएगा, और जो pseudospores है they come out of it. ठीक है? And form new amoeba. Done? Okay. So now let's put a difference between the multiple fission and binary fission. दोनों देख लेते हैं अपन एक बार. Okay, so let's put a difference between मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन. सो अभी आपने मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन देखा. सो बाइनरी फिशन में आपने क्या नोट किया कि यार सिर्फ 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. ओनली 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. क्या लिखेंगे? सेल्स फॉर्म्ड. और मल्टीपल फिशन भी आपने देखा तो कितने डॉटर सेल्स फॉर्म? काफी सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था. तो we'll put it as many daughter cell are formed. Many daughter cells are formed. ठीक है? दूसरा डिफरेंस जो अवेलेबल है कि यहाँ पे जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है ना, वो कितनी बार डिवाइड करता है? ओनली 2 टाइम्स. बट याले केस में जो पेरेंट न्यूक्लियस था वो कितनी बार डिवाइड करता है? मेनी टाइम्स. ठीक है? सो लिख लेंगे पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड्स वंस. और यारे केस में पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड्स मेनी टाइम. मेनी टाइम्स. ठीक है? या फिर वी कैन टर्म इट एज रिपीटेडली डिवाइड करता है. फिर the parent cytoplasm in this case is completely divided. क्योंकि 2 पोर्शंस में डिवाइड करना है. while in this case the parent cytoplasm is not completely divided क्योंकि काफी सारे न्यूक्लियाई के ऊपर साइटोप्लाज्म अक्यूमुलेट होगा. तो जो डिवीजन होगा, एक्यूमुलेशन होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा. पेरेंट साइटोप्लाज्म इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड. और लास्ट पॉइंट अगर देखें, सो लास्ट पॉइंट में लेट्स टेक द एग्जांपल्स. सो एग्जांपल ले लेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी अमीबा, पैरामोशियम एंड बैक्टीरिया.
अमीबा को आपने मल्टीपल फिशन में भी देखा, बट दैट इज इन द एडवर्स कंडीशन. So it's going to be paramecium, and we can also take the bacteria. ठीक है, मैं यहाँ पे भी अमीबा मेंशन करूंगा, बट आपको पता होना चाहिए दैट इज गोइंग टू बी इन द एडवर्स कंडीशन. सो यहाँ पे एग्जांपल में मैं फिर से अमीबा ले लेता हूँ, बट दिस इज गोइंग टू बी इन द एडवर्स कंडीशन. नॉर्मली इट इज गोइंग टू बी बाय बाइनरी फिशन. ठीक है, दूसरा एग्जांपल जो मैंने मेंशन किया था दैट वाज द मलेरियल ऑर्गेनिज्म Plasmodium vivax. It's a protozoa. It's a protozoa. ठीक है, done. So these are some of the examples for multiple fission, and these are some of the examples for binary fission. So I hope जो भी इस लेक्चर में डिस्कस हुआ है it's now more clear. ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सेक्शंस में भी ये सब पढ़ रखा है, बट थोड़ा डिटेल में, बिकॉज एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव पार्ट, सो वी नीड टू बी मोर डिटेल्ड. ओके, तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स यहाँ पे ऐड करी हुई. सो मेक श्योर आप लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू करो, अच्छे से नोट्स बनाओ. ठीक है, और नोट्स को आपको मुझे व्हाट्सएप करना है. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी बाकी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग बाकी है, काफी सारे स्टेप्स बाकी है. सो उनको नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक. थैंक यू सो मच.